the students. So in the last lecture we started about the Plasmodium, which causes the malaria. We started about the life cycle of the Plasmodium. That the female Anopheles mosquito act as the carrier of sporocytes. Sporocyte is the infective stage for human beings. Now these sporocytes reaches the liver of the human. They divide asexually over there. Liver cells burst. Sporocytes come into the blood. Okay. Then asexual reproduction occurs in the RBC and RBC burst. At this stage, when RBC are bursting, hemozoin pigment is released into the blood, and which is the cause of the fever and chills at the regular intervals. जो 2-3 intervals पे 2-3 दिन के intervals पे जो लगातार fever आता है, it is because of this hemozoin pigment. Then we studied कि RBCs में ही sexual reproduction होता है, गेमेटोसाइट्स फॉर्म होगी, मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स. दोनों का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा मॉस्किटो के स्टमक के अंदर. जब मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस गेमेटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएगी. वहाँ पे इसका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है. फिर हमने पढ़ा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से स्पोरोसॉइड्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि स्टमक से कहाँ चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे मॉस्किटो की. एंड देन दिस साइकिल विल कंटिन्यू. Now today we will start about one more parasite, which is Enta-amoeba histolytica. Now this Enta-amoeba histolytica causes amoebiasis or amoebic dysentery. Now it is caused due to consumption of contaminated food and water. आप लोग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खा लेते हैं तो उसके कंजप्शन से अमीबाइसिस आपको हो सकता है. सो व्हाट आर दी सिम्टम्स? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन विल बी देयर, एंड देयर विल बी म्यूकस इन दी स्टूल्स. म्यूकस फिल्ड स्टूल्स विल बी देयर. ठीक है. एंड इनका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? जो हाउस फ्लाई होती है वो एज अ मैकेनिकल कैरियर एक्ट करती है. इसलिए हमें जो फूड एंड वाटर है वो कवर करके रखना चाहिए. अगर हाउस फ्लाई उन पर आके बैठती है तो वो क्या कर सकती है? एंटा-अमीबा हिस्टोलाइटिका को उस फूड पे स्प्रेड कर सकती है. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोटोजोन डिजीज, एंटा-अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि क्या कॉज करता है? अमीबाइसिस कॉज करता है. Now what is the organ which gets affected over here? So the organ which is getting affected over here is your large intestine. So your large intestine is basically getting affected by the Enta-amoeba histolytica. Now the next similar kind of disease which will be going to affect your intestine is caused by a roundworm. So roundworm Ascaris, which you must have studied in class 11. So Ascaris causes the disease which is known as Ascariasis. Okay, now this disease will also be going to impact our intestine. Okay, so Ascariasis results into internal bleeding. Bleeding can occur in the intestine. Okay, fever will be there. Anemia can occur in such conditions. And what are the other? Muscular pain will be there. Now, what is the mode of transmission? So they are transmitted through food and water contaminated with the eggs. So food and water which are contaminated with the eggs of Ascaris. Contaminated with eggs of Ascaris. So if you are consuming any such kind of food and water, so you can get infected with the Ascariasis disease. That's why when you bring fruits and vegetables at home, you need to buy them thoroughly so that there is no kind of infection which you can get from the fruits and vegetables. Okay. Now the next kind of disease which is caused by a filarial worm is elephantiasis. Or which is also known as filariasis. Now, this disease is caused by a filarial worm which is known as Wuchereria. Okay, so Wuchereria have two different species, Bencroft and Malai.
Wucheria bancrofi and Wucheria malayi. So these will be going to cause elephantiasis in a person. So how elephantiasis occur? It is because of the bite of the female Anopheles mosquito. So female Anopheles mosquito act as the carrier for this filarial worm. तो फीमेल एनाफिली मॉस्किटो अगर किसी पर्सन को बाइट कर लेता है जो कि विचीरिया को कैरी कर रहा है, सो इट कैन कॉज दी एलिफेंटियासिस इन दैट पर्सन. इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन का लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या होगा, स्वेलअप होगा. तो ऐसे पर्सन की जो लेग्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाथी के जैसे बड़े हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं. तो जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं लोअर लिम्स की, उनको अफेक्ट करेगा. सो व्हाट इज़ द ऑर्गन अफेक्टेड? So organ affected is lymphatic vessel of lower limb. मेनली लिम्फेटिक वेसल्स अफेक्ट होती है लोअर लिम्ब की, जिस वजह से स्वेलिंग वगैरह हो जाती है. अलॉन्ग विद दैट जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इम्पैक्ट हो जाते हैं. तो ओवरऑल ऐसे पर्सन के अंदर क्या आ जाती है, डिफॉर्मिटी कॉज हो जाएगी. क्योंकि लोअर लिम्ब का लिम्फेटिक वैसे पूरा स्वेल हो गया है तो जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी उसका इम्पैक्ट आता है. तो ग्रॉस डिफॉर्मिटी कॉज होगी ऐसे पर्सन के अंदर. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट देयर आर टू स्पीशीज, Wucheria bancrofi and Wucheria malayi, which causes elephantiasis. It is caused by the bite of the female Anopheles mosquito carrying the Wucheria and Wucheria, which is a filarial worm, and lymphatic vessel of lower limbs are getting affected, as well as the genetic organs also get impacted. That's why it results into gross deformity. Now the next kind of disease which we will be going to study is caused by the fungi. Okay, so there are different classes of fungi which causes the diseases which are known as ringworms. So these ringworms are caused by the fungi of classes Microsporum, Trichophyton and Epidermatophyton. Now what will be the symptoms of the ringworms? कभी ना कभी किसी को हुआ होगा रिंगवर्म. तो रिंगवर्म में क्या होते हैं, सिम्टम्स के अंदर ड्राई स्केली लेशंस हो जाते हैं स्किन के ऊपर. सो ड्राई स्केली लेशंस ऑन स्किन. ठीक है, स्किन के ऊपर ड्राई स्केली लेशंस हो जाएंगी. इचिंग वगैरह होती है. सो देयर विल बी इंटेंस इचिंग, क्योंकि जो फंगस होता है वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करता है. तो मॉइस्चर वाला जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर जो फंगस है उसको अक्वायर कर सकते हैं. सॉइल वगैरह पे अगर आप बैर फुट वगैरह वॉक करते हैं तो हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के आपने कोम यूज़ कर लिए हैं, टाल यूज़ कर लिया है, तो भी आपको रिंगवर्म क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है. ठीक है, सो दीज आर द वेज बाय विच डिफरेंट डिजीज़ेज आर गेटिंग ट्रांसमिटेड. तो हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ ली, फंगल डिजीज़ पढ़ ली, वायरल डिजीज़ पढ़ ली, प्रोटोजोन डिजीज़ पढ़ ली है. Now what are the preventive measures which can be taken to prevent these diseases? So preventive measures क्या हो सकते हैं हमारे पास में, ऐसी डिसीज़ जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही है. ठीक है, जैसे कि अमीबाइसिस है, स्कैरियासिस है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम क्लीन फूड एंड वाटर यूज़ करें. फूड एंड वाटर हर कहीं से रोड साइड से नहीं खाएं, मैश से कवर करके रखें, फूड को वाटर को खुला नहीं छोड़ें. तो क्लीन फूड एंड वाटर हम कंज्यूम करें. वेजिटेबल्स वगैरह को हम वॉश करें, वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर ब्रिंगिंग देम होम. और क्या कर सकते हैं, जो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारी डिसीज़ेज होती हैं जिनके वेक्टर मॉस्किटोज़ होते हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. या तो वायर मैश यूज़ किया जाए. ऐसी डिसीज़ेज़ को कंट्रोल करने के लिए घर के अंदर जालियाँ लगाई जाती हैं ताकि मॉस्किटोज़ अंदर नहीं आ पाए. वायर मैशेस यूज़ कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं, जो स्प्रे वगैरह करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से इनके लार्वेज को किल करने के लिए, तो लार्वा को किल कर दिया जाए. गेम्ब्यूसा फिश होती है जो भी क्या करती हैं, लार्वेज के ऊपर फीड करती है, तो गेम्ब्यूसा फिश यूज़ करी जाए. और क्या होता है, जो भी स्टेगनेंट वाटर है
स्टेगनेंट वाटर को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। बोलते हैं ना कि पानी भर के नहीं रखें, कूलर वगैरह की जो वाटर है उसको चेंज करते रहें ताकि उनके अंदर लार्वीज जो हैं वो नहीं आए। सो दिस इज़ द वेज बाय विच ऐसी डिसीज़ जिसके अंदर मॉस्किटोज एक्ट करें एज ए विक्टिम को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी डिसीज़ जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही है उनके अंदर क्लीन फूड एंड वाटर कंज्यूम करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम वॉश करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर कि बेसिक जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, क्लीनिंग योर बॉडी, मेंटेनिंग बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन करना, यूज़ करना। So these are all the ways by which we can save ourselves from all these diseases. So that will be it. In the next lecture we will start with the immunity.